So this is a video based on implicit function, which is the next topic of differentiation. Now, before we talk about implicit function, let's just understand these three examples very well. For in the first example, if you see, we can easily separate y and x. इसमें अगर आप देखो, if I ask you to make x as a function of y, तो इसमें simple हम लिख सकते हैं 2y is equals to 1 minus 3x, y is equals to 1 minus 3x upon 2. यानी कि y और x को आप easily अलग कर सकते हो, and then you can simply differentiate and find dy by dx. When it comes to the next question, now इसमें आप भले y को अलग नहीं कर पाओ, लेकिन what you can do is you can make y as a function of x. For example, x is equals to minus sin y plus log y plus y. Now इन दोनों फंक्शन में in this case, if you see, अगर मुझे y की वैल्यूज निकालनी है, I can put x anything. For example, मैं 1 डाल रही हूँ, 2 डाल रही हूँ, I'll get different values of y. So basically this function here, this variable basically x is called independent variable. जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर रही है, we can freely put the value, right? We don't have to think over it. I can put 100 also, I can put 2 also. But again, y की value will depend on the value of x. The value of y will basically depend on the value of x. So यहाँ पे जो x होगा वो एक independent variable है, and y is basically a dependent variable. Now in a question like this, यहाँ पे आप y की value आप easily put कर सकते हो 1, 2, 3, whatever you feel like, and again you will get different values of x. तो अगेन इस केस में जो y है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो x है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो अभी तक जो हमारे पास डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं टिल क्लास 11 एंड द इनिशियल पार्ट ऑफ क्लास 12, उसमें y और x को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ अलग अलग कर सकते हो. बट नाउ इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस क्वेश्चन, यू गॉट इम्प्लिसिट फंक्शन. सो इम्प्लिसिट फंक्शन में होता क्या है बेसिकली, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो इसमें x को अलग करना और y को अलग करना इज अ बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू द क्वेश्चन लाइक दीज. इसमें x और y को डिफरेंशिएट, आई मीन यू कैन नॉट सेपरेट x एंड y इजीली. सो ऐसे फंक्शन जहां पे आप x और y को अलग नहीं कर सकते हैं, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से यहाँ पे आ गया log एंड देन यू हैव गॉट xy प्लस साइन x square y, then you have 3. So basically इस question में भी अगर आप separate करना चाहो तो it will become very difficult for you to separate. So these functions are called implicit function. इनका differentiation is what we have to study. Other than that, see question में हमेशा it will be asked that find dy by dx, but it is not necessary that you have to differentiate only with respect to x. ऐसा जरूरी नहीं है. In fact, there are questions where you have to differentiate with respect to u, v, w. Always remember that the initial letters जो a, b, c, d, e होते हैं and all that, these are treated as constant. And जो u, v, w, x, y, z, ये सारे हम लोग as variables consider करते हैं. This you have to know. Now जो हमेशा जैसे अगर आपको आ रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फाइन a, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है. बट u, v, w these are considered as functions. One thing. Second thing that you should know that you can differentiate with respect to anything and everything. For example, अगर मेरे पास यहाँ पर sin t है और मैं इसे t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो sin का डिफरेंशिएशन वी नो cos t, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मेरे पास यहाँ पर है log y एंड इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो log y का डिफरेंशिएशन सिंपल 1 अपॉन y. लेकिन अगर मेरे पास फंक्शन है log y और मुझे डिफरेंशिएट इसे x के टर्म में करना है, तब दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ देयर इज दिस फंक्शन log y एंड इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y. क्योंकि ऊपर फंक्शन y का है, नीचे डिफरेंशिएट x के टर्म में कर रहे हैं, यू हैव टू ऐड dy by dx. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. हमेशा याद रखो अगर यहाँ पे sin t है और मुझे x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t, लेकिन ऊपर किसका फंक्शन है t, तो राइट dt. नीचे किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं x, तो राइट dx. एवरी टाइम व्हेनेवर यू डू दिस. अगर क्वेश्चन यही है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है sin y प्लस log y, अगर मुझे y के टर्म्स में करना है तो इट विल बी जस्ट log cos y एंड दिस विल बी 1 अपॉन y. लेकिन इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sin y का डिफरेंशिएशन cos y साथ में dy by dx प्लस log y का डिफरेंशिएशन 1 by y साथ में dy by dx.
So this is how you have to do. You can take dy by dx obviously common, but again अगर नीचे फंक्शन डिफरेंट है, अगर नीचे जिसके टर्म्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दैट इज समथिंग एल्स, और ऊपर फंक्शन कोई और है, साथ में यू हैव टू ऐड एन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल देखो, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है एज यू कैन सी। ऑल्सो you have to see if there are x in more quantities, तो फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। if y is it in more quantity then differentiate with respect to y, totally up to you। so इसमें हम सिंपल x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। we have to find dy by dx, so differentiating with respect to x यानी कि d by dx of x square plus d by dx of y square minus 3, bring the constant aside, and d by dx of x into y। Understand that these two functions are in multiplication, you keep the constant outside, equals to d by dx of 1। now x square का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे भी x है, डिफरेंशिएट भी x के टर्म में करें, ऊपर भी x है, कुछ नहीं आएगा साथ में। बट हियर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन साथ में यू विल हैव टू राइट dy by dx, किसके टर्म में डिफरेंशिएट करो, x, तो नीचे x, ऊपर किसका फंक्शन है, y का, राइट dy minus 3। now if you know you will have to apply what, product rule in this, first function second function, keep one of the function as it is, differentiate the other in such a manner। for example if you keep x as it is, differentiate what, y, if you keep y as it is, differentiate x, is equals to 1 का differentiation 0। now this is going to be 2x plus 2y dy by dx minus 3x as it is। अब y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, साथ में नीचे dx, ऊपर y के टर्म्स में था इसलिए इस तरह से। why we are writing it, because फंक्शन ऊपर अलग है, नीचे डिफरेंशिएट किसी और चीज में कर रहे हैं। प्लस y, x का डिफरेंशिएशन सिंपल 1, यू वोंट हैव टू राइट एनीथिंग, why, बिकॉज दोनों सेम है। सेम का मतलब ये कि ऊपर फंक्शन भी x का है और नीचे डिफरेंशिएशन भी x के टर्म में कर रहे हैं, equals to 0। so this is how you have to differentiate, this is the first step। second step is to find dy by dx by taking them at one side, that we'll discuss later, but first of all learn to differentiate। again अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसमें भी आप x के टर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो d by dx of y into sec x plus d by dx of tan x, and then d by dx of, again as you can see functions are in multiplication, x square into of y is equals to, it's 0 basically, तो 0 का differentiation 0 constant है। now y into sec x यानी कि first function second function, keep one of the function constant, differentiate second, keep second constant, differentiate first। तो अगर हम first को as it is कर रहे हैं, differentiate what, sec x, plus in case if you're differentiating with respect to x, then sec x as it is, differentiate what, y, प्लस ये तो सिंपल है, अलग ही है, अकेला है, x के टर्म में, ऊपर फंक्शन भी x का है, tan x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन sec square x, प्लस अगेन देयर आर टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, कीप वन ऑफ द फंक्शन एज इट इज, फॉर एग्जांपल x square as it is, differentiation of what, y, y as it is, differentiation of what, x square equals 0। now differentiation of sec x is sec x tan x, साथ में कुछ नहीं आएगा, y, ऊपर फंक्शन x का है, नीचे डिफरेंशिएट x के टर्म में कर रहे हैं, प्लस sec x, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, लेकिन अगेन x है, ऊपर y है, साथ में क्या आएगा dx एंड ऊपर dy, sec square x प्लस x square, अगेन सेम चीज, dy by dx, y x square का डिफरेंशिएशन 2x। so this is something that you should know for a class 12 student, this is something that you have to know। बाकी ये कि dy by dx की वैल्यू निकालनी है, that you should know कि यहाँ पे ये dy by dx है, ये dy by dx है, take common and shift rest of the function in RHS। for example अगर आप इन दोनों में से dy by dx कॉमन ले रहे हो, so what you will get, sec x अंदर और साथ में क्या है x square, बाकी सबको आप उधर भेज दीजिए। for example ये 2xy minus 2xy, this one sec square x, then you have got this minus y sec x tan x, और ये मल्टीप्लाई का कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। so this is what the value of dy by dx is, this is how you have to do। but so this is another question based on implicit function। now again as you can see we cannot separate x and y, it is quite difficult to separate them, so simply what we're going to do is differentiate with respect to x।
जब आप इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इधर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या है एक तरह से साइन y का होल स्क्वायर, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, अगेन देर आर टू फंक्शंस x इंटू वाई, एंड d बाई डी एक्स ऑफ k. नाउ k तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 0. अब यहां पर समझो, सबसे पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, यानी कि अगर कभी पावर है तो पहले ऐसे लिखते हैं. अगर ये साइन y का होल स्क्वायर है, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज अप्लाई चेन रूल. सबसे पहले ट्रीटेड एज x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन 2x, x क्या है यहाँ पे साइन y इनटू, अब स्क्वायर का कर चुके हो आप, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y. नाउ इसमें समझिए कि नीचे x है, ऊपर y है, तो साथ में वी विल राइट dy बाई डी एक्स. क्यों? क्योंकि ऊपर y का फंक्शन है, नीचे x है. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन y cos y, साथ में क्या आ गया dy बाई डी एक्स. यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज साइन 2y बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट. अगेन जब यहां पे करो तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन साथ में क्या आएगा, क्योंकि ऊपर y है नीचे x, नीचे dx, ऊपर y का फंक्शन है dy, प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1. सो बेसिकली यू हैव x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी 0. नाउ सिंपल इसमें आप dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं. जब dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x. नाउ सिंपल देखो, अप्लाई द फॉर्मूला व्हेन यू नो द फॉर्मूला. 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin y cos y इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2y. चाहे वहां पूछा हो ना पूछा हो, बट दिस इज समथिंग यू कैन डू. माइनस y, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस y अपॉन x प्लस साइन 2y. See, this is very. Now again one thing that you have to understand is that implicit functions में it may look like an implicit function but it may not. हो सकता है कि वहां पे you can easily separate x and y. तो ये चीज आपको बहुत keenly observe करनी है कि if there is a possibility of separating x and y, separate them and then differentiate. जो भी easy लग रहा है differentiate करने को, ऐसा नहीं कि हाँ दिखा question और लग रहा है x और y साथ में and you started differentiating. If you observe this question very carefully, तो इसमें हम x को लिख सकते हैं ना y अपॉन साइन a प्लस y. कहने का मतलब ना y is all separate, x is all separate. So ध्यान से देखा जाए तो it is not an implicit function. This is what you have to understand. अब करना क्या है, देखो डिफरेंशिएट करना है, बट ये चीज समझो कि सारा क्वेश्चन y की फॉर्म में है, ठीक है, तो क्यों ना इसे y के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y. अगर पूरा क्वेश्चन आपका y की फॉर्म में है, सिंपली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बिकम मच इजियर. अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, नो as you can see it's question rule will be applied because दो functions हैं, they are as fractions. तो सिंपल होता क्या है क्वेश्चन रूल, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एंड राइट डी बाई डी एक्स. अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप y लिख दीजिए. सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो आई एम गोना राइट y. नाउ नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट साइन स्क्वायर a प्लस y. नाउ अगर आप यहाँ पे साइन a प्लस y, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन a प्लस y is equals to differentiation of this. x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा dx by dy, क्योंकि इस बार नीचे फंक्शन y का है, ऊपर x है, equals this is going to be as it is. now y का डिफरेंशिएशन 1, साथ में कुछ भी नहीं आएगा, y नीचे y का फंक्शन है, ऊपर भी y है, तो it is going to be just sin a plus y minus y. साइन का डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी व्हाट cos a प्लस y. a का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, अगर इसे अलग से करोगे तो 0, और y का डिफरेंशिएशन 1, तो सिंपल 1 आएगा. सो दैट इज नॉट व्हाट आई एम राइटिंग. सो दिस इज हाउ यू कैन डू. देखो dy बाई डी एक्स अगर आप डायरेक्टली भी करोगे implicit function में, that will also give you the answer, but this is what you have to understand कि
जो ये क्वेश्चंस आते हैं दे आर यूजुअली प्रूविंग क्वेश्चंस, उसमें आपको प्रूव करना पड़ता है. सो देयर विल बी समथिंग दैट यू विल हैव टू प्रूव, जो अगर आप डायरेक्टली करोगे दैट विल बी डिफिकल्ट टू डू. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है जहां आपको लगता है यू कैन सेपरेट एक्स एंड वाई, गो फॉर इट. जहां लगता है कोई पॉसिबिलिटी, कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपली डिफरेंशिएट. जैसे अगर क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो इसमें आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर लो क्योंकि सब बराबर ही दिख रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यस यू कैन सेपरेट एक्स एंड वाई, देन गो फॉर इट. ट्राई टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, डिपेंडिंग अपॉन कौन ज्यादा क्वांटिटी में है. फॉर एग्जाम्पल इफ वाई इज मोर देन यू कैन डिफरेंशिएट वाई और अदरवाइज एक्स. सो दिस इज वन थिंग. क्वेश्चन आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, वी कैन इजीली सेपरेट. अगर बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख रहे हो ओरली, मतलब ये नहीं कि वहीं पे स्टार्ट कर दिया, दिख गया, इस तरह से स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दिया. सो यू हैव टू सी कि व्हाट यू हैव टू प्रूव. यू हैव टू प्रूव दिस. सो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो तो दिस यू कैन सी कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसको मोल्ड करो, क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली लेके आओ. कहने का मतलब सबसे पहले y को एक साइड लेके आओ, ऐसे लिख सकते हैं इसको. You can take y common. This is going to be what? Log x plus 1 equals x. So y is equals to x upon 1 plus log x. Now if you simplify the question, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, you can easily do it. और अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएशन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, फिर इसको आपको किसी तरह मोल्ड करना पड़ेगा. क्वेश्चन रूल लगाओ, सिंपल x के टर्म में डिफरेंशिएट. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? dy by dx. नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अभी करा था. डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, साथ में कुछ क्यों नहीं आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है. माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, ना भी लिखें चलेगा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x कैंसिल. 1 प्लस log x माइनस 1, नीचे ये आ रहा है आपका, तो ये आ जाएगा. तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड. सिंपली देखो, अगर x और y सेपरेट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कीप द क्वेश्चन एज इट इज. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल देयर इज इन योर इम्प्लिसिट फंक्शन. एनसीईआरटी में तो और ही खत्म क्वेश्चंस हैं, बट इन मिसलेनियस देयर आर गुड क्वेश्चंस. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, अगर ये क्वेश्चन है तो x cos y plus a. Again, you have to prove dy by dx cos square y plus a upon sin a. Now वही चीज देखो, अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो अगेन गेटिंग एन आंसर लाइक दिस विल बी डिफिकल्ट. चेक वेदर यू कैन सेपरेट और नॉट. सिंपल है, x अकेला है, सारा फंक्शन y का है, x को अकेला छोड़ दो, क्या आ जाएगा? cos y अपॉन cos y प्लस a. अब इसमें सिंपल क्या करो, देखो दो वी हैव टू फाइंड dy by dx डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बार पूरा फंक्शन y में है. Why should I differentiate it with respect to x? This will become more complicated. तो अब अगर मैं dx by dy कर रही हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, लिख देना, ठीक है. तो d by dy ऑफ x, देखो x का डिफरेंशिएशन 1, साथ में क्या आ जाएगा? dx by dy. यहां पर सिंपल क्वेश्चन रूल लगाएंगे, साथ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा क्योंकि करी y के रिस्पेक्ट में रहे. क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे कोई डिफरेंशिएशन नहीं, डिनोमिनेटर एज इट इज. क्योंकि एक चीज समझो, इस बार हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos y का सिंपल डिफरेंशिएशन माइनस साइन y माइनस. नाउ अब अगर आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्या था ये क्वेश्चन, सॉरी, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन y प्लस a, और y प्लस a का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, तो इसको मैं पहले लिख रही हूं, ये हो जाएगा साइन y प्लस a cos y, एंड दिस टर्म इज माइनस, तो माइनस cos a y प्लस a साइन y अपॉन whatever there is. बहुत ध्यान से समझ लो, इसमें कुछ नहीं हुआ है. क्वेश्चन रूल में आप सिंपल क्या करते हो, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साथ में dy by dx हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएट ही y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. सेम चीज यहाँ पे भी, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. इसमें अगर आप चेन रूल भी लगा रहे हो तो cos का डिफरेंशिएशन साइन y प्लस a, फिर y का करोगे तो 1, a का करोगे तो 0, तो ये घूम फिर के वही आ जाएगा. नो
ऑब्जर्व दिस टर्म वेरी वेरी केयरफुली. ये फॉर्मूला बन रहा है क्लास 11 पे. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर वॉट? साइन ए माइनस बी. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी. ए क्या है? वाई प्लस ए. बी क्या है? वाई. बीच में माइनस, कैंसिल. ऊपर क्या आ गया? साइन ए और नीचे क्या आ गया? कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए. सो आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है मिसलेनियस में. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट अगेन इसमें ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर x और y को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करो, मेक देम इंडिपेंडेंट फंक्शंस, एंड इफ यू कैन नॉट देन तो यू डायरेक्टली हैव टू डिफरेंशिएट. So that's all there is in implicit function. It will be widely used in your higher order differentiation, which is again of important marks, and then the other part is your differential equations. तो दोनों में बहुत जरूरी है ये. So that's about it. Thank you.